I guess. Oh, hi. 0 viewers. I'll just start with why am I doing this. So basically, I was coming back from a shoot. I was shooting a mood piece. Hello, Bhumik. I was shooting a mood piece, and I was coming back, and I realized that I'm just surrounded by artists now. Like all the time, I'm just surrounded by artists, and there are a lot of things which these artists share with me which never come out, and I was like those stories are important for this small community we have. Like every day I'm looking for on my Instagram, someone is making something, someone is sharing something they have made, videos, poems, and everything. So basic idea is to just have a conversation with the people I believe in, or if I miss out on you, it doesn't mean I don't believe in you. You should believe in yourself. So today I was like let's start with someone who has been I've seen someone's journey so closely. Is my best friend Rahul Samant. Like you must have seen him in my stories or like somewhere or the other. And his journey, I've seen it so closely because he wanted to like do something in photography, then he started doing videography, cinematography, and then suddenly switched to music. And I've heard him sing 3 years, 4 years back, and I heard him sing right now, and it's a huge change, and I'm so proud of him. So I guess he is here. If he sends a request, then I think I'll be able to add him. Samant, send me a request to add because okay, I'm a little. Okay, I'll just send you a request. Go live with Mr. A little not so good with technology, like Instagram Live especially. Oh, हेलो. you should turn phone ऐसा ओ कर दे बाबा. शिट. रुक जा, एक मिनट रुक जा. फर्स्ट टेढ़ा आया तू सीन. लाइव पे. अरे यार मेरे पास वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रॉपर स्टैंड है नहीं. रुक जा. हाँ हाँ. मैं अरे मैंने सीन भी सेट कंप्यूटर पे करके. रखा है. नहीं रुक, मैं तुझे सीन सेट करके वापस रिक्वेस्ट करता हूँ. तो क्या ओके. डिस्टर्ब नहीं होएगा अपने को फिर? ठीक है सर. ठीक है. ठीक है, कूल. चलो. Let's continue the story then. What else? This is again kind of awkward that yeah, so he started training in Hindustani classical music and he's been training since I guess last 3 to 4 years. He's been doing covers right now of a lot of songs on his Instagram. If you haven't seen it yet, please देखो, support करो. और तो कुछ नहीं यार, मतलब सही चल रहा है उसका भी. वो लिखता है गाने, आज सुनेंगे थोड़े. And yeah, basically when I was in engineering, I used to go to a friend, get an assignment book, copy that assignment and everything, and I just realized that अब यार आसपास देखो, हर बंदा हर बंदी, everyone is making something, everyone is creating something, and sometimes it's scary. Okay, hi, Samant is here. Go live with Mr. Samant. सीन सेट हो गया सर. यस, तो फाइनली. ऑलरेडी कैसा है, क्या चल रहा है आजकल? ब्रो मैं तो ठीक ही है. कुछ इतना खास तो हाँ चल हाँ नहीं रहा है फिलहाल तो. सब ऐसे अभी क्या हाँ. बोलता है, बहुत ड्राउजी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ नया मोटिवेशन मिल नहीं रहा है करने को. लेकिन ठीक है, कट रहा हाँ है. हाँ. तो कुछ इतना खास नहीं है. ठीक है. तो तू काफी काफी गाने वाने लिख रहा है. मैंने थोड़े बट पढ़े हैं, बट तू काफी गाने वाने लिख रहा है, काफी प्रोडक्टिव भी है, तो वो साइड भी तो बता. हम्म. मतलब सिर्फ चिल तो नहीं कर रहा तू? हाँ मतलब अभी ऐसे देखेंगे तो गानों का साइड लिखने का प्रोसीजर आई गेस लास्ट ईयर से शुरू है. तो अभी तक ऑलमोस्ट लिख चुके हैं 12-13 सॉन्ग्स तो खुद के लिखे हुए. लेकिन वो एक पॉइंट पे ऐसे क्या बोलते हैं, पोइट्री की तरह हो गई. ऐसे प्रॉपर सॉन्ग सॉन्ग नहीं, वो पोइट्री की तरह हो गई. तो उसको मतलब पोइट्री को गाने में भी बदला जा सकता है. तो अभी तक तो फिलहाल 1-2 गाने ही है जो मैंने मेरे बैंड के साथ शेयर किए. तो उस पे काम चल रहा है फिलहाल. लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया तो फिर वो भी वहां पे भी अटक गए हम लोग सब लोग. स्टक तो हो गया. अभी तो वही प्रॉब्लम है, वही चल रहा है सब. तो गाने का लिखने का सीन लास्ट ईयर तो मतलब तुझे तो पता ही है, जब हम इन स्पेस पर काम कर रहे थे तभी की बात है.
जब तुझे हम That घर आ रहे two थे years तब मैंने ago. तेरे को बोल रहा, हाँ 2 साल पहले हाँ हाँ तुझे मैंने बोला था कि कुछ भी करूंगा पहला गाना मेरा ट्रैवलिंग पे होगा। तो वही हाँ हाँ दिमाग में हाँ रख के मैंने शुरू किया था। और फर्स्ट सॉन्ग जो प्रॉपर सॉन्ग मैंने बैंड को बताया था, वो सॉन्ग हम्म, लिखने के पहले भी काफी सारे स्क्रैचेस थे जो मैंने फेंक दिए, मतलब उसका कुछ यूज नहीं था, कोई हम्म, सेंस नहीं था, कोई हम्म, मीनिंग नहीं थे। तो हम्म, फाइनली मैंने कोई एक गाना लिखा जो बैंडमेट्स को पसंद आया, बैंड को पसंद आया, उस पर हम लोग काम कर रहे थे अच्छे से और वो हम्म, काफी अच्छा हुआ। और सेट भी हम्म, हो हम्म, चुका था एक पॉइंट के बाद लाइव में। लेकिन पता नहीं कुछ बैंड में इश्यूज हो गए तो फिर वो गाना फिर से रुक गया। तो वहां हम्म, पे जर्नी एंड नहीं होती है, वापस लिखते रहना पड़ेगा मुझे। तो आगे हम्म, भी और बहुत सारे सॉन्ग्स लिख दिए मैंने, तो एक पॉइंट तक हाँ अभी वो हाँ ट्रैवलिंग वाला फेज मैंने खत्म कर दिया लिख लिख के। तो अभी तो हाँ हाँ। दूसरे फेज में आ चुका हूँ फिलहाल अब तो ऐसे। लॉकडाउन में क्या ही ट्रैवलिंग के गाने लिखेगा तू। अभी क्या, अब सिर्फ सोच के यहाँ वहां जा सकते हैं ना, तो कुछ नहीं होगा। हाँ वो तो बेस्ट पार्ट है। बट थोड़ा वापस पीछे जाते हैं ब्रो, मैं तेरे को जानता हूँ आई गेस कितना साल हो गया अपन दोस्त है, बहुत टाइम हो गया। और हैप्पी यू वर बर्थडे डूइंग ब्रो। फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग, things you should not mention on this live session. A lot of people don't know where those things, so you should not mention those things. Anyway, तो तू फोटोग्राफी वगैरह कर रहा था, और फिर कभी हुआ स्विच, कभी हुआ तेरा एक्चुअल स्विच, कभी हुआ टू म्यूजिक एंड देन एज अ सिंगर पहले, और फिर तो अब तो तू लिखता भी है, प्रोड्यूस भी कर रहा हम्म है, बैंड भी है, लाइव परफॉर्मेंसेस भी कर रहा है, कभी हम्म हुआ ये हम्म सब? अ, शुरू 15 ईयर्स का था मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने माइकल जैक्सन को प्रॉपरली सुना। मतलब नाम तो पता ही था, हम्म जो उनके बेसिक सॉन्ग्स थे हम्म वो तो पता ही थे, स्मूथ क्रिमिनल, बीट इट और हम्म ये सब गाने तो सुने थे। लेकिन एक बार ऐसे प्रॉपरली मैंने सुनी उनकी लाइव, बिली जीन लाइव मैंने फर्स्ट टाइम सुना। तो वो देख के वो हम्म, स्टार स्ट्रक होता ना आदमी कि अरे ये क्या है, ये हाँ इतना इतना अमेजिंग कैसा है ये आदमी। तो मैंने वही मतलब 1-2 वीक में मैंने पूरा पढ़ लिया माइकल जैक्सन को, ऐसा पूरा अब्सॉर्ब कर लिया मैंने। हम्म मैं सोचा बोला ये हम्म आदमी कैसे इतना अमेजिंग म्यूजिक बना सकता है, इतना कैसे उसका सोच है, ये है वो है, सब दिमाग में चल रहे थे। हम्म तो धीरे धीरे वो एक इंटरेस्ट जागने लग गया कि म्यूजिक कुछ तो है एंड उसमें कुछ किया जा सकता है, मे बी सिंगर बनने की कोशिश कर सकते हो। तो एट अ ओके पॉइंट मतलब मेरी मॉम ने और जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे कहा था पहले कि मैं ऐसे ही क्लास में बैठ के गाते रहता था बिन मतलब। तो उसका कुछ पॉइंट था, मैं ऐसे ही गाते रहता था। तो मेरे को तभी बचपन में बोला गया था कि तू सिंगिंग क्लासेस जा अगर तुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने वो इग्नोर कर दिया। लेकिन वो घूम फिर के हाँ वापस वो लाइफ में आया मेरे पास। हाँ तो हाँ मैंने बोला कि ठीक है एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो स्टार्ट के हम्म 1-2 साल आई गेस 15, 16, 17 ईयर्स का हो गया, तब तक कुछ इतना सीरियसली लिया नहीं मैंने उसको एज लाइक हम्म हिंदुस्तानी सीखना चाहिए या कुछ वेस्टर्न सीखना चाहिए या कुछ ऐसा प्रॉपर करना चाहिए म्यूजिक में। मैं सिर्फ गा रहा था, कुछ ऐसा ये नहीं था, पॉइंट नहीं था, बस हॉबी बोलते हैं ना, ऐसे ही गाने की हाँ हॉबी हाँ होती हाँ है, बस हाँ वैसी थी। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद थोड़े बहुत ऐसे दोस्त मिलने लगे जो गिटारिस्ट है, जो गाते हैं, ओके जिनको गाना पसंद है मेरी तरह। तो उनके हम्म साथ बैठ के बस ऐसे ही गाने गाते रहते थे हम लोग, कौन सा गाना पसंद है तुझे, कौन सा नहीं, ये वो चिट चैट होती रहती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल के डेमो क्लास के लिए जा रही है, तो तू आएगा क्या? हम्म तो मैंने बोला ठीक है एक ओके बार कोशिश करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम्म क्योंकि हिंदुस्तानी किसी को पसंद नहीं है ऐसा देखा जाए तो। ऑल्दो वो हम्म इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, लाइक इंडिया में उसका ये हुआ हम्म है, उसकी वजह से काफी लोगों को म्यूजिक का ये हुआ। लेकिन लोग इंडियन क्लासिकल को सीरियसली लेते नहीं है, तो मैंने भी लिया नहीं। मुझे भी लगता था बोरिंग यार, लोग ऐसे ही गा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग सब लोग वेस्टर्न मतलब से अपने लेवल इन्फ्लुएंस्ड पे है। ना, हाँ अपने अपने एज के लेवल पे लोग। इंटरेस्ट। हाँ हाँ तो अपने एज के लोग ऑलरेडी वेस्टर्न साइड से इन्फ्लुएंस्ड है, लोग ऑलरेडी ईडीएम सुन रहे हैं, ब्रूनो मार्स के गाने सुन रहे हैं, इसके गाने सुन रहे हैं, एड हम्म शीरन के गाने सुन रहे हैं, तो वो लोग क्यों क्लासिकल में इतना दिल लगाएगा। तो ये वही वही दिमाग था। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही चला गया डेमो क्लास के लिए। तो वहां पे जाके बैठा मैं, तो सब बैठे बच्चे गा रहे, कोई मेरे से बड़े उम्र में, कोई ऑलमोस्ट 33-35 ईयर्स के, कोई छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के, हाँ हाँ वो लोग भी बैठे हैं। तो मैंने बोला भाई कुछ तो होगा, मतलब ऐसे थोड़ी लोग आएंगे इतने हम्म, बड़े और इतने छोटे। तो तो मैं गया बैठा वहां पे बैठा मैं और मैं दे सुन रहा हूँ। तो उस क्लास में गुरु ताई जिनको हम बुलाते, हम्म, वो हम्म, वही गाने उनको गा रही थी जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, थैंक्स टू माय डैड, जो मतलब सुबह सुबह जो भजन कीर्तन डैड जो बजाते हैं घर पे, वही सुनते आ रहा हूँ मैं, और वही यहाँ पे लोग गा रहे। तो मुझे पता नहीं है, कुछ तो अलग तरीके का एक वाइब हिट हो गया वहां पे कि हाँ यार हाँ कुछ तो सीख सकते हैं यहाँ पे ऐसे।
तो वैसे एक हाँ और हाँ कुछ नया रीजन मिल गया, एक नया सा क्या बोलते हैं वाइब मिल गया मुझे लाइफ में या फिर म्यूजिक में, जो जिसको हाँ मैं पकड़ सकता हूँ। तो हाँ वैसे शुरुआत हुई, फिर मैं फर्स्ट क्लास अटेंड की मैंने, और उसके बाद मुझे हाँ। डेंगू हो गया, तो मैं 1 महीना गया नहीं, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। और वो साल खत्म हो गया और जनवरी में मैंने वापस शुरू किया, तो वो डेंगू के बाद कुछ ओके। अलग ही एक एटमोसफियर हो गया, जिसमें मैं मेरा एक दोस्त है यश पालन करके, जिसके साथ पहले हम्म मतलब तुझसे मिलने से पहले भी मैंने उसके साथ मतलब ऐसे ही छोटे मोटे हम्म चीजों पे हम लोग वीडियोस वीडियोस बनाते थे ऐसे। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि मेरे सामने एक दोस्त है मेरा, वो भी ऐसा बैंड वैंड हम्म शुरू किया उसने म्यूजिक में, वो लोग रोज जैमिंग वैमिंग करते हैं, तू चाहता है तो मैं तेरे को उससे बात कर रहा था। मैंने बोला ठीक हम्म। है। तो ऐसे दुष्यंत से मेरा कांटेक्ट ये हुआ। तो दुष्यंत ने दुष्यंत बोला गमानी। कि हाँ, तो दुष्यंत ने कहा हाँ कि तू एक काम कर, तू मुझे तेरा कोई भी ऐसे रिकॉर्ड किया हुआ मेरे को पीस भेज, मैं सुन के तेरे को बताता हम्म हूँ क्या है। तो वो उसने सुना, तो उसने बोला कि चल अच्छा है, तू कुछ तो कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली मैं बेसुरा ही गा रहा था, तूने तो सुना ही है मेरे को, तो मैं बहुत बेसुरा अरे गा रहा था, वो उसको बात पता कर। है। इसका ये तो व्हेन यू कंटिन्यू फिर स्टार्टेड अपन आउट, करते हैं। कंटिन्यू। हाँ। तो ये हो गया, उसके बाद धीरे धीरे शख्सियत में एक्चुअली एंट्री मेरी एज अ मैनेजर हुई, क्योंकि मेरे को हम्म पता था वो लोग मेरे को गाने को नहीं देने वाले, लेकिन मैं कैसे तो भी घुस गया मैं। तो मैं एज अ मैनेजर पहले गया, तो दुष्यंत ने मुझे बोला कि तू मेरे को शोज ला के दे, अपन जैमिंग साथ में करेंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं सब जगह फोन वोन लगाने लग गया, फर्स्ट टाइम एज अ मैनेजर था, तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था मेरा, बोला कैसे करते हाँ हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो ये सब बातें हो रही है, सब हो रहा है, फिर धीरे हाँ धीरे तो बैंड में कुछ इश्यूज होने लग गए, लोग छोड़ के गए, नए लोग आने लग गए। उतने में मैं भी हम्म कुछ नया गया सीखते जा रहा था। तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं कोई स्केल पे गा नहीं पाता था पहले, मतलब कुछ भी हो जाए मैं ऑफ स्केल ही होता था, एक दो सेंटेंस गाया फिर हाँ मैं हाँ कुछ हाँ ना कुछ हो जाता था, तो ऑफ। ऐसे। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे फिर वो ट्रैक पे आने लग गया, फिर उसके बाद तू ही है पहला कवर है जो मेरा ऐसा प्रॉपर सुर में। वो तू सुनने के बाद भी तू भी चौंक गया था, बोला भाई तू गा रहा है, बोला हाँ। तो वैसा शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बैंड में घुस रहे हैं हम लोग, और अभी चल रहा है अभी तक। हाँ। ओके। तो मेरे को एक बात बता, जब तू शुरू किया, तू बोला तू बेसुरा था, ठीक है? हम्म। और मैं भी तेरे को एक्चुअली बोला था कि ब्रो तू श्योर है क्या तेरे को ये करने का है? पता नहीं। और हाँ। अपना काफी लंबा कॉन्वर्सेशन होता है उसके बारे में। और उसके हम्म। बाद जब मैंने फर्स्ट कवर सुना, तब मैं बोला कि फक ब्रो क्या हो गया तेरे को, अचानक तू गाने लगा। हाँ। तो वो व्हेन यू स्टार्टेड आउट, तेरे को डर नहीं लगा क्या कि ब्रो मैं सोच रहा है कि मैं करियर इसमें बनाऊं, और इनिशियल स्टेज पे हम्म। आई एम नॉट। सो वो क्या इंटरनल स्ट्रगल क्या था तेरा? क्योंकि एक्सटर्नली तो मे बी तेरे को लोग बोल रहे थे, जो हाँ हाँ करने वाले वो बोल रहे कि ब्रो क्या गा रहा है क्या गा रहा है, बट इंटरनली हम्म। यू नो दैट नॉट दैट गुड। सो व्हाट वाज दैट स्ट्रगल लाइक? स्टार्ट में जब भी शुरू हुई थी, तब काफी यस यस करने वाले लोग बहुत थे मेरे आजू बाजू, तो कॉलेज वाले सपोर्ट कर हम्म। रहे थे, रिलेटिव सपोर्ट कर रहे थे, घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, बोला ऑफ गा रहे कोर्स। हाँ गाने दो, हाँ। बच्चा है ऐसे ही गाएगा, फेल पे निकल जाएगा। तो वैसे ही चल रहा था वो। तो वो चालू है, एंड मैंने कॉलेज के इसके मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी ये शुरू हुई हाँ थी सिंगिंग की प्रॉपर एकदम ऐसे। हाँ तो हाँ हाँ ऐसे शुरू हुआ, फिर कॉलेज के एक दो चीजों में मैंने पार्टिसिपेट की, तो वहां पे भी गाया था, तभी भी लोग बोल रहे थे अच्छा है, अच्छा है, कर रहा है, कर रहा है, कर तू आगे बढ़ी, वो ये वो। तो वैसे शुरू हुई और गाते जा रहा था, गाते जा रहा था, फिर एक पॉइंट के बाद मैंने लाइफ का मेरा सेकंड कवर डाला था जो ऑफ था पूरा। ठीक है। तो वो डालने के बाद पता नहीं कोई तो एक बंदा था जो ऐसा फैमिली रिलेशन में आता है, मतलब दूर का ऐसा रिलेशन में आता है, तो वो कोई तो एक साउंड साउंड इंजीनियर है, गिटार विटार बजाता है, ऐसे सब है। हम्म। तो उसने बोला कि ब्रो एक काम कर, तू मेरे को मिल, अपन कुछ करते हैं साथ में। मैं एक्साइटेड ओके। हो गया, बोला इतना भारी आदमी है, मेरे को मिलना चाहता है, काम करेंगे कुछ ऐसा वैसा। तो वैसे हम लोग मिले, और हम हाँ लोग हाँ एक्चुअली एक मैशअप क्रिएट करने का था हम लोग को। एंड हम लोग ने हाँ काफी ऐसे 35-40 गाने निकाल दिए, और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मैशअप क्या होता है, मेट्री हम्म। क्या होती है, स्केल पे गाना क्या होता है, सुर क्या होता है, राग कुछ नहीं मालूम मेरे, मैं ऐसे ही चला गया। हाँ। और तेरा क्लासिकल का ट्रेनिंग टाइम पे कि वो बंद था? नहीं, ये टाइम पे मैं क्लास नहीं गया था, ये 2016 की बात है, 2016-17 अच्छा, की बात है ये। बिफोर डेंगू। हाँ। हाँ तो ओके। वैसे शुरू हुआ, एंड फिर मैं उसको मिला, तो उसमें एक काफी बड़ा रियलिटी हिट किया मेरे को कि मैं गा नहीं सकता। हम्म तो हम्म उसने मेरे को बोला कि ब्रो गाने के लिए तेरे को सुर पे होना जरूरी है, तेरे को समझ में आना चाहिए कैसे गाना है, क्या गाना है, क्यों गाना है, हम्म कैसे गाना है। तो ये बहुत ऐसा बहुत बड़ा तमाचा था मेरे मुंह पे।
उसने ऐसे बोल दिया तो मैं बहुत सोच में पड़ गया कि ब्रो गलत तो नहीं कर दिया मैंने कि ये लाइन में आ गया। मैं मेरा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड है नहीं, मेरे फैमिली में से कोई है नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मैं डर गया था बहुत, तो मैं डरा हुआ था, बहुत टाइम तक डरा हुआ था। लेकिन एक बोलता ना, सबकॉन्शियसली तेरे दिमाग में चलते रहता है कि नहीं भाई तू कर सकता है, तू कोशिश तो कर, कुछ तो होएगा तेरे से। तो वो चलता रहा। लोगों से बाद में धीरे धीरे बात करने लगा मैं, कोई थे जो सीनियर्स थे तभी, जिन्होंने बोला था कि हाँ भाई करेंगे अपन, फिर बाद में हाँ। काम दे दिया मेरे को। लकीली मेरे को एक पॉइंट पे एक अच्छा सा इंस्पिरेशन मिला। रोहित पिल्ले करके गिटारिस्ट है हमारे मेरे कॉलेज का। तो वो लोग यूथ फेस्टिवल के लिए कुछ तो कर रहे थे। तो तभी मैं फर्स्ट ईयर में आया था, और तभी क्लास में से ये हुई, अनाउंसमेंट हुई कि जाना है कि वेस्टर्न म्यूजिक के लिए कोई कोई रेडी है तो आ जाओ। तो पूरे क्लास में मैंने अकेला हाथ खड़ा किया, तो सब देख रहे हैं मुझे। एक दो जन तो थे तो मेरे साथ जूनियर कॉलेज में भी, तो वो लोग मेरे को पूछ रहे भाई तू गाता है, हम लोग को मालूम नहीं। बोला अभी तो शुरू किया है मैं, तू देख तो सही आगे क्या होता है। तो मैं धीरे धीरे गया, और कोई था नहीं ऑडिशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में वो हाँ। एक ग्रुप बेस था, ठीक है, जो ओके। जो हर हर साल यूथ फेस्टिवल के लिए या इधर उधर इवेंट्स के लिए हाँ जाता हाँ था। हाँ। तो मैं पहली बार हूँ जो ऑडिशन देने को आया है। तो जो हम्म, गिटारिस्ट था वो मेरे को पूछ रहा था, बोला भाई तू पक्का ऑडिशन देने को आ रहा है ना, कि ऐसे ही उठ के आ गया है। बोला नहीं नहीं भाई मेरे को इंटरेस्ट है, तू मिल मेरे को। तो मैं मिला उससे, बातें की। तो उसने मुझे कहा कि देख तू सीखा नहीं है, तेरे को पता नहीं है गाना क्या, हाँ, तो तू एक काम कर, तू हाँ, हमारे साथ चल, तू सिर्फ जैमिंग में बैठ, सुन कैसे करते हैं हम लोग। तो मेरे को ओके। थोड़ा सा ऐसा होप लगा वहां पे कि हाँ चल देखते हैं कैसे होता। तो हम लोग वो लोग ने सेट किया था वो वाला सॉन्ग, रेडियो एक्टिव सेट किया था इमेजिन ड्रैगन्स का, और डॉन ओमर हम्म, का एक और था कोई, तो मुझे नाम नहीं याद। तो उसका ऐसा कुछ तो हम्म, फ्यूजन व्यूजन वो लोग ने करके रखा था। तो मैं उसमें गा रहा हूँ, तो जब ग्रुप में है तो मैं गा पा रहा हूँ, अच्छे से गा रहा हूँ। हम्म, लेकिन जब सिंगल मेरे को गाने बोल रहे तो मैं डर जाता था, बहुत बहुत कॉन्शियस हो जाता था हम्म, कि ये सब लोग सीनियर लोग मेरे को क्या बोलेंगे, कैसा करेंगे वैसा करेंगे। हम्म, मेरे को कुछ नॉलेज होने के बाद भी मैं म्यूजिक के ऑडिशंस में जा रहा हूँ, दे रहा हूँ, कॉलेज के इधर उधर जा रहा हूँ, रिजेक्ट होके आ रहा हूँ, मेरे को कुछ हम्म, फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ऐसे ही जा रहा है देने के लिए, क्योंकि मजा आ हम्म, रहा था, मेरे को गाने से मतलब था, तो मैं वैसे ही गया। धीरे सही है। धीरे फिर जब बाद में फिर क्लासिकल का मतलब हिंदुस्तानी हम्म, क्लासिकल डेमो क्लास के लिए गया, फिर वहां से अभी तक जर्नी चालू। हम्म। तो तेरे को जब फर्स्ट टाइम वो गिटारिस्ट ने बोला कि तू नहीं गा सकता, तू गंदा गा रहा है, तो तभी हाँ ऐसा शैटर नहीं हुआ क्या? मतलब हुआ ना ब्रो। व्हाट मेड यू स्टे स्टिक ब्रो, कि तूने छोड़ा नहीं ना उसके बाद भी तू जा रहा है, ऑडिशन दे रहा है, तू रिजेक्ट भी हो रहा है इतना, तो इतना हाँ रिजेक्शन, अब तो तू सीख गया है। अब हाँ रिजेक्शन होगा वो अलग बात है। पहले हाँ तेरे को बोल रहे तू गा ही नहीं सकता जो तेरे को करना है। सो एट हाँ दैट टाइम हाउ वर यू कोपिंग अप विद दैट कि अरे ब्रो क्या कर रहा है, मैं मेरे को मालूम नहीं है। तो वो कैसा था, वो ट्रांजिशन डाइकोटोमस नहीं हो गया था क्या तू? हाँ। मतलब ऐसे बहुत डर गया था मैं कि इसने ऐसे हम्म, बोल दिया है, तो अभी कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रही है मुझे कि कुछ तो गलत हो रहा है ब्रो, मैं गा नहीं सकता, हाँ या हाँ फिर मैं गलत फील्ड में आ गया, हाँ या फिर ये मैं फील्ड का हूँ ही हाँ, नहीं। तो ऐसे एक दो हम्म, हफ्ता तो बहुत ये था, मतलब ऐसे बहुत मुंह पे आ जाता ना कुछ, एक तो ऐसा हम्म, एकदम शांत हम्म, हो गया था। मैं बोला कि कुछ तो हिट हो गया ब्रो, कुछ तो गलत हो रहा हम्म, है, जम नहीं रहा है मुझे। तो वो तो मतलब एक ऐसा बोलते ना, एक ऐसा चीज आके चली गई। मतलब मैंने उस पर ज्यादा इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, क्योंकि नहीं, दिमाग दिमाग अलग अलग जगहों पे रहता था। उस टाइम पे कॉलेज भी चल रहा था, तो पढ़ाई वढ़ाई चल रहे थे, तो उसका भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता था वो टाइम पे। तो हम्म, एग्जाम एग्जाम देने के चक्कर में थोड़ा भूल कुछ, जाते थे हम। ऑफ कोर्स, हाँ। तो उसमें उसमें भूल जाते थे हम लोग कि हाँ छोड़ा भी, जान दे, क्या सिंगिंग, क्या ये क्या वो। हाँ लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ये थी कि दोस्तों ने वो टाइम पे भी ऐसे नहीं कहा कि मुझे कि ब्रो तू हग रहा है, तू मत गा, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा हम्म, मत कर, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं। लोग हम्म, बोल रहे थे ठीक है कर, होएगा तेरे से, होएगा, तू कर तू। फिर हाँ, वो सब आजू बाजू में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी था वो टाइम पे, तो वो कोप अप करने हम्म, के लिए बहुत ऐसा इजी पड़ गया मेरे को। तो मैं बोला ठीक है चल, अभी लोग बोल रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो फिर वैसे धीरे धीरे मैं गाने गाने सुनते गया, घर पे हम्म, स्पीकर पे जोर जोर से गाने बजा के साथ में ही गाता था, ताकि मैं मेरे को लगे कि मैं कहाँ ऑफ हूँ। फिर कभी कभी मैं हम्म, खुद का ही पार्ट्स रिकॉर्ड करता था और फिर सुनता था, हम्म, फिर मालूम पड़ता था अरे मैं तो गंदा गा रहा है। फिर मैं वापस ईयरफोन्स डालता था गानों में, फिर वो ओरिजिनल सॉन्ग कान में बज रहा है और मैं वही सुर पे गा रहा हूँ। तो जब कान में हम्म, मेरे प्रॉपर सुर है, लोग कोई गा रहा है मेरे साथ कान में, तो मैं प्रॉपर गा पा रहा था, ऐसा मुझे फील हुआ। ओके, तो फिर हाँ धीरे हाँ, धीरे ऐसे ही मैं गिटार सीखने लगा, फिर गिटार क्लासेस जाने लगा यहाँ वहाँ। तो वहां से गिटार सीखने की प्रोसेस शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हम्म, जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे सीखते जा रहा था। फिर आगे आगे तो हम्म, गिटार तो 2-4 साल हो गया अभी, बट इतना कुछ ऐसा हम्म, बड़ा बात नहीं है वो गिटार का। लेकिन बेसिक रिदम और ये सब तो बजा ही लेता हूँ।
वैसा। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो फिर उसके बाद तेरा फेज शुरू हुआ, तू ट्रेन करना शुरू किया म्यूजिक में। और आई गेस तो ताई जिसको तू बोलता है, उन्होंने तेरे लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट लाया। तो बट अब एवरी टाइम वी मीट यू टेल मी अ स्टोरी अबाउट हर एंड इट्स लाइक कि ये कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, और वो उनके वजह हम्म से हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले वेयर यू आर हम्म इन द हम्म। जर्नी। सो उनके बारे में बात कर ब्रो कि क्या कैसे स्टार्ट हुआ, और फिर तेरा फुल 100%। अभी तो कैसा है कि तू जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उसके बाद तू अब तो मतलब 100% यू आर इनटू म्यूजिक। सो हाउ डिड दैट हैपन, व्हाट वाज द ट्रांजिशन? और ताई के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट में जब हिंदुस्तानी क्लास के लिए मैं बैठा था, तब स्टार्ट में थोड़ा हम्म टफ लगा मुझे। मुझे लगा कि हम्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत हैवी था। मतलब एक पॉइंट पे आके हम्म ऐसे होता है आई गेस कि क्लासिकल में जब मतलब आवाज जब चेंज हो जाती है मेल की, जब प्यूबर्टी हिट होता है और आवाज चेंज हो जाती है, तो उसके बाद वो पूरा प्रोसेस जो आपने सालों से सीखा है वो वापस रिपीट करना पड़ता है उस नए आवाज में। तो ओके। हाँ हाँ स्टार्ट में वो आवाज भी बहुत बोलते हैं ना ऐसे एकदम वीक था मेरा जब शुरुआत हुई हाँ थी। हाँ हाँ तो हाँ ताई ने हाँ। मुझे बोला कि कुछ नहीं, तू करते रहे, हो जाएगा, तू ऑलमोस्ट वो वर्ष पे जहाँ पे तू समझने का शुरू कर लेगा इसको। तो वो क्लासेस ओके। अटेंड करने लग गया। एक पॉइंट के बाद 1-2 महीना हो गया, तब आवाज में थोड़ी सी फर्क आने लग गई, वो समझ में आया मुझे। और उसके बाद हाँ। आवाज में जब फर्क आया तब थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना मोटिवेशन बढ़ गया, थोड़ा सा ऐसा कि हाँ। अंदर से एक ऐसा एक ये हो रहा था कि हाँ भाई कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे घर पे एक छोटा सा कीबोर्ड था मेरे पास, उस पे बैठ के मैं अपना सारे गामा पा करते रहता था, जो ताई ने सिखाया है वो हमारे बुक में है, वही घर पे बैठ के मैं प्रैक्टिस करते रहता था। तो ऐसे सारे राग और सारे गामा पा और आलाप पलटे ये सब कर करके आवाज प्रॉपर स्केल पे आने लग गई। और फिर अलग अलग तरीके के लोगों को सुनते सुनते तब समझ में आया कि एक्चुअली म्यूजिक कैसे होता है सब। तो फिर वो वो पूरा एक बोलता है ना एक फेज आ गया नया कि म्यूजिक में अभी प्रॉपर घुसना है मुझे। तो वो वो फेज की वजह से फिर वैसे दिमाग चलने लग गया मेरा कि हाँ भाई अभी सीखते हैं और सीखते हैं। और फन फैक्ट ऐसी हुई कि ताई मेरे फैमिली के साथ रिलेटेड थी। मतलब पहले जब दादाजी थे तभी की बात है। तब ताई के फैमिली में सब लोग दादर में जहाँ पे अपन ने इंस पे शूट किया था, वही घर में उनके बाजू वाले घर में उनका मतलब वो उस्ताद लोग बैठ के वहां पे रियाज रियाज करते थे, जामिंग करते थे, रात रात भर महफिल बैठी रहती थी। तो ताई ने मुझे पूछा कि तू इनसे रिलेटेड है क्या? मैंने बोला हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो हमारी जान पहचान वैसे ही शुरू हुई। तो वो एक क्लोज रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो गया ताई के साथ कि हाँ मतलब कहीं से तो म्यूजिक कहाँ तो कनेक्टेड है मेरे लिए भी। तो वैसे वो शुरुआत हुई। फिर ताई के साथ बाद में चीजें शेयर करना शुरू किया मैंने कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, ऐसे सीखना है, वैसे सीखना है। तो ताई को भी लगा कि हाँ ये इंटरेस्टेड है इतना, तो इसको और सिखाते हैं अपन। तो वैसे वैसे फिर क्लासेस में भी चेंजेस आने लग गए। तो हमारे इसमें कैसा है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए 2 दिन के क्लास होते हैं, ट्यूसडे फ्राइडेज। और ओके। थर्ड और फोर्थ ईयर या ऊपर के जो सीनियर लोग हैं उनके लिए अलग ईयर्स के होते हैं। तो वैसे ही शुरुआत हुई। तो मैं स्टार्टिंग में 2-2 क्लास जो जाने लग गया था, मैं चारों क्लास जा रहा हूँ। मैं फोर्थ ईयर भी अटेंड कर ओह। रहा, मैं थर्ड ईयर भी अटेंड कर रहा है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर भी अटेंड कर रहा, सब सीख रहा मैं। तो वो इंटरेस्ट मेरे को पकड़ के रखा। और क्लासिकल मेरे को क्या है तब समझ में आया क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों सब लोग बोलते हैं कि कोई भी संगीत सीखने जा रहा है, कोई भी आर्टिस्ट है जो गाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, प्लीज क्लासिकल सीखो। क्योंकि क्लासिकली बेस, अगर क्लासिकल का बेस तुम लोग को नहीं आएगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि वो रिदम कैसा है म्यूजिक का। तो वैसे फिर वो प्रॉपर दिमाग मेरा प्रॉपर आया उस चीज पे। ओके। और अभी एक चीज है कि मेरे को पता नहीं था तूने गाने लिखना शुरू किया, अनलेस एंड अनटिल यू केम लाइक वी हैविंग अ कन्वर्सेशन, तूने मेरे को बताया कि ब्रो एक गाना लिखा है। ठीक है। मैं हम्म तेरे को बहुत साल से जानता था। अभी भी मैं इसीलिए लाइव में रुका था, कितने सारे लोगों ने सुना है, एंड द काइंड ऑफ राइटिंग यू डू, पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आउट ऑफ यू राइट नाउ आफ्टर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। क्योंकि सुनने में लगता है कि अरे सावन बहुत चिल बंदा है, ये एकदम क्या हाँ। मतलब सही है, चिल है। पर अपना गुलजार भाई हो छुपा हुआ। तो एक गाना नहीं। सुना ब्रो। उसने हाँ। अपना ओजी अभी तक किधर परफॉर्म नहीं किया, आई गेस कहीं बाहर नहीं आया उसका ओजी, ही स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट अभी ऐसा दिल के करीब है मेरे, तो सुन अग्री किया है कि लाइव पे एक ओरिजिनल गाना सुनाएगा, तो लेट्स हियर इट। हाँ सुना दे बाबा, सुना दे। ठीक है। सो कौन फर्स्ट सा जो सुना मेरा दे। सबसे पहला सॉन्ग है जो मैंने मतलब अभी तक लिखा है ऐसे प्रॉपरली। तो एक मिनट। या। तो ये सॉन्ग का
जैसे मैंने बोला था स्टार्ट में कि ट्रैवलिंग पे मुझे फर्स्ट सॉन्ग लिखनी है कुछ भी करके ऐसे। तेरी आवाज कट हो। हाँ। यार काफी स्ट्रेस है ये चीज। हाँ तो ऐसे ये फर्स्ट सॉन्ग लिखा था। अभी तो मतलब इसका नाम फिलहाल तो ऐसे मैंने ये रखा है, रास्ते रखी। तो कुछ इतना नाम आगे बदल भी सकता है, अभी तक तो कुछ जैमिंग की नहीं, तो ये सिर्फ ऐसे ही एक छोटी सी अकॉस्टिक वर्जन है उसमें। बह रही है ख्वाबों की नदी, कह रहे हैं लहरें सभी, खामोश दिल है यहाँ, खो गया है सारा जहां, चल पड़ा मैं तो रास्ते हैं अनकही सुनी, बांटे मैंने जो पर यहाँ, भूला हूँ मैं घर का पता, ये टेढ़ी मेढ़ी राहें ये मुझको ये बुलाए, ये खिलखिलाती है जो दुनिया, ये टेढ़ी मेढ़ी राहें ये मुझको ये बुलाए, आओ देखो मेरा आशियाँ कैसे हो गए हैं रास्ते अनजाने, राहों में है झांकते, कैसे हो गए हैं रास्ते अनजाने, राहों में है झांकते, जरा बहती हवा खामोश दिल है यहाँ, सुन जरा बहती हवा खामोश दिल है यहाँ, सुन जरा बहती हवा खामोश दिल है यहाँ, सुन जरा बहती हवा खामोश दिल है यहाँ। नाइस। बहुत सही, बहुत सही। काफी पब्लिक ट्रिप कर रहा है अपना कमेंट सेक्शन में भी, मोस्टली अपना पब्लिक ही है बट फिर भी ट्रिप कर रहा है। बहुत सही यार, बहुत सही। मतलब जैसे तू बात करता है, जैसे अपना हमेशा कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद तूने जब मेरे को ये गाना सुनाया था ना ब्रो, मैं इतना फ्लिप किया था तेरे को मारना, मैं बोला कुछ भी मेरे को लगा किसी इंडी बैंड का गाना है, तू चिपका रहा है मेरे को, तू बता रहा है मेरे को। कैसे लिखा फर्स्ट, मतलब उसके बाद तू लिखना कब से शुरू किया ब्रो, मेरे को बता तू। लिखने का प्रोसीजर लास्ट ईयर एक फेज था मेरा, जो तुझे पता है। उस फेज काफी अच्छे से। उस फेज के टाइम एक पता नहीं कुछ तो कहीं से तो आ गया मेरे में कि एक्चुअली हाँ। नहीं, एक्चुअली हमारे बैंड के जामिंग के टाइम पे जो हमारा सिंगर था उसने एक गाना लिखा, तो वो गाना सुन के एक ओरिजिनल लिखने की ऐसी भूख सी आ गई अंदर, बोला कि भाई अभी अपन भी लिखते हैं, बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो ऑन पेपर कर ही देंगे। और सीन ऐसा था कि उसके पहले हम लोग उसके पहले मैं खुद बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा 4 लाइन के पोएम या फिर 4 लाइन के कुछ ना कुछ ऐसे लाइन्स कुछ ना कुछ तो लिखते रहता था। तो वो कुछ जम नहीं रहा था, मतलब वो खुद मुझे ही हिट ही नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरे को क्या बताएगा। तो वो इतना सारा मतलब लेजिट क्या बोलते हैं स्क्रैचेस था ना मेरे पास। तो उसके बाद मेरे को बाद में याद आया कि मैंने तेरे से बात किया था ब्रो, अपन फर्स्ट गाना जो भी लिखेगा मैं ट्रैवलिंग पे लिखेगा। तो मेरा मेरा मतलब गोल क्या है, आई हैव टू लिव इन माउंटेन समवेयर, मेरा खुद का ऐसा एक बड़ा घर रहता उधर, ये सब ऐसा मेरे दिमाग में चलते था। तो वो पॉइंट को लेके मैं बैठा था पूरा टाइम, और ऐसे और उस टाइम पे लकीली सर आ गए थे लाइफ में मेरे ऑलरेडी। तो वो एक फेज बहुत ऐसा एक इम्पोर्टेंस एक इम्पैक्ट दे गया मेरे को कि भाई तू लिखता ना, भी तो हो गया, मतलब सर ने खुद ही बोला
ऐसा लग रहा था। चल अभी लिख देते। तो मैं हाँ। बैठा था ऐसे ही, मतलब गिटार लेके बैठा था एक बार मैं रूम में हम्म। मेरे, और ये वाली जो ट्यून है गिटार में, हाँ। तो ये ट्यून बाहर है। तो मैंने बोला, तो ये मुझे खुद को पसंद आया कि बोला कि हाँ ब्रो ये ट्यून हाँ। अच्छा है, अपन इस पे कुछ करते हैं। हाँ। हाँ। तो फिर इसके बाद हम्म। वो पूरा एक क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन बनाया कॉर्ड्स का, और उसके बाद वो हम्म। ट्यून मैंने रिकॉर्ड किया और वो लूप पे मैं सुनते गया। हम्म। रात रात भर सुनते रह रहा था, एक दो रात हो गई, मेरे को कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा था कि हम्म। कहाँ से शुरू करूं मैं। फिर एक पॉइंट के बाद मुझे धीरे धीरे एक लाइन ऐसा लाइंस में बनाने लग गया क्या है। हम्म। और फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब नेचर को ज्यादा, मतलब मैं ऐसा बहुत फोकस्ड हूँ नेचर की तरफ। तो माउंटेन्स में हम्म। क्या क्या होता है ये सब मैं वो विजुअलाइज करने लग गया, क्या है क्या नहीं। तो वो वैसे धीरे धीरे बह रही है ख्वाबों की नदी, हम्म। कह रहे हैं लहरें सभी। तो वो एक एक चीज एक एक हम्म। डॉट ऐसे कनेक्ट करते गया, कनेक्ट करते गया। और फिर वैसे बाद में वो सॉन्ग पूरा टर्न अप होने लग गया। फिर वो पहला चार लाइन मैंने लिखा, पहले चार लाइन के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी प्री कोरस क्या होगा, कोरस क्या होगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं सीखते जा रहा था, तो मैं वही हम्म। एग्जीक्यूट कर रहा था। मतलब आज मैंने अगर सीखा है तो वही चीज मैं कल एग्जीक्यूट कर भी रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं उस चीज में और कुछ डेप्थ हम्म। में, लेकिन इतना मेरे को खाई था लिखने का। तो वो मैं हम्म। करते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, लिखते जा रहा है। और ऐसे करके पूरा गाना मैंने लिख दिया। हम्म। और ये गाना मैंने लिख के मैंने खुद के पास ही रखा था, मैंने किसी को ज्यादा बताया नहीं कि मैंने हाँ। गाना लिखा है या कुछ किया है ऐसा कुछ। हम्म। मैंने बैंडमेट्स को भी नहीं बताया था। ऑलमोस्ट एक दो महीने बाद मैंने दुष्यंत को बताया कि ब्रो मैंने गाना लिखा है, सुने क्या। तो मैंने उसके सामने बजाया तो बोला सही है, इस पे कर सकते हैं अपन, जैमिंग करते हैं, अच्छा लगेगा ये वो ये। हाँ। तो उसको पसंद आ गया, तो मैंने बोला ठीक है, अब इसको भी पसंद आ रहा है, बैंड वाले लोग को भी पसंद आ रहा है, कुछ तो मतलब इम्प्रोवाइजेशन हुई है राइटिंग में भी। तो वो पहला तो ऐसा होता है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि पहला गाना लिख डाला फ्लूक है अभी। हाँ। तो वो एक डर बैठ गया मेरे में, बोला कि मैंने ऐसा एकदम फ्लो में लिख तो डाला है, अभी दूसरा गाना अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा मेरे से तो उसका क्या होगा। तो हाँ। मैं डर गया, तो मैं बोला अब क्या करे। तो मैं फिर हाँ। धीरे धीरे मतलब लकेली के सॉन्ग्स को पढ़ने लगा कि उनका कैसा हम्म। राइटिंग स्टाइल है। वो अलग अलग हम्म। टाइप के क्लासिकल सॉन्ग्स को पढ़ने लगा, उनके राइटिंग स्टाइल्स को पकड़ रहा था। तो मेरा घूम फिर के मन तो वापस माउंटेन्स और नेचर की तरफ ही आ रहा था, वापस वो लकेली जैसे वाइब को ही पकड़ रहा था मैं बार बार। तो मैं बोला ठीक है, तो अब इस पे ही वापस कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक गाना लिख दिया था मैंने, तो फिर वापस अलग अलग टाइप के रिदम्स और ये सब आने लग गए दिमाग में। फिर धीरे धीरे दूसरे गाने की शुरुआत हुई, दिल की जुबा का मैंने घर पे बैठ के ऐसे ही मैंने बजा दिया था। तो हम्म। वो सॉन्ग मैंने एक्चुअली ऐसे मतलब बैठे बैठे मैंने लिख दिया। उसका कुछ ऐसा मीनिंग था नहीं इतना खास, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद मैं पढ़ने के बाद में बोला कि ब्रो इसका ऐसा मीनिंग निकल सकता है। तो आगे कभी प्रेजेंट करने जाएंगे तो मैं काफी ये बताऊंगा। काफी तो ऑनेस्ट, काफी ऑनेस्ट। हाँ। नहीं, सीधा जो बात है वो है, फुकट झूठ बोल के मस्ती नहीं करने का मेरे को। तो ये हो गया उसके बाद। हाँ। तो उसके बाद ये और दिल की जुबान लिख दिया, फिर अलग अलग गाने हाँ। आने लगे। फिर उसके बीच में भी काफी अलग अलग टाइप के स्क्रैचेस थे जो मैंने निकाल के फेंक दिए, जो तुझे सुनाए थे तू मैंने। रात सुना। नहीं नहीं, तू पहले रात सुना। ध्वनि पागल हो रही है कमेंट में, रात 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 रात। अरे अरे अरे, और रात सुनाओ क्या। हम्म। ठीक है, हाँ। और उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू कर, पर पहले रात सुना कि ध्वनि ध्वनि को शांति हो जाए थोड़ा। ठीक है, ठीक है। ध्वनि हो गया फाइनली। रात। रात की हवा लाई है यहाँ, एक नई मुलाकात, मिलके हम यहाँ खो गए कहाँ, ऐसी है ये बातें। तारों से आसमां भरा, चांद भी चमकता गया, रात की इन बाहों में सो चुका है सारा जहां। हे ओ, वो हे ओ,
चला, प्यार की इन राहों पे वक्त भी थम सा गया, तुम जो हो बाहों में, कहती ये हवा कह गई यहाँ खुश है ये मुलाकातें, मिलके हम यहाँ खो गए कहाँ, ऐसी है ये रातें, तारों से आसमां भरा, चांद भी चमकता गया, रात की इन बाहों में सो चुका है सारा जहां, हे ओ, नाइस। भारी, बहुत सही, बहुत सही। तो रोमांस भी आ गया तेरे में अभी, और माउंटेन से तो रोमांस की तरफ आ गया, बट अगेन स्टोरी बिहाइंड दिस सॉन्ग इज दैट व्हाइल वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द माउंटेन्स यू रोट दिस हाँ इन द नाइट। अभी स्विच करते हैं कि देख, कोई भी फैमिली, तू पहले बीएमएस कर रहा था, ठीक है, और हर फैमिली में एक स्ट्रेस रहता है कि बच्चा आर्टिस्ट बनेगा तो बच्चा भूखा मरेगा, ठीक है, क्योंकि फेथ नहीं है। हाँ, फेथ है ही नहीं, आर्ट फॉर्म पे फेथ ही नहीं है। तो बराबर। वो क्या था, मतलब घर पे कैसे कन्विंस किया कि यार अभी हाँ मैं मास्टर्स कर लिया, बीएमएस वीएमएस कर लिया, अब मेरे को गाना गाने का। व्हाट वाज द रिएक्शन, एंड इफ यू कैन शेयर द एक्चुअल रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, दैट विल बी रियली फनी। सो आई गेस, हाँ समझ रहा ना तू मेरा इशारा? हाँ तो सीन ऐसा था कि जब शुरुआत हुई, स्टार्टिंग में तो फोटोग्राफी और ये सब था, तो वो टाइम पे भी बहुत स्ट्रेस था उस चीज पे कि क्यों करना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ऐसा करना को करा लाते, ऐसा करना, तो ये सब चल रहा था। तो एक पॉइंट के बाद जब ऐसा मन हट रहा था फोटोग्राफी और फिल्मिंग से और ये सब से, तब म्यूजिक का इंटरेस्ट इतना ग्रो हो रहा था एक पॉइंट पे कि जब वो डेमो क्लास के लिए मैं गया था, तब मैंने खाली मेरी मॉम को बताया था कि मैं जा रहा हूँ, किसी को बोल मत, मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ जाके आऊंगा, इसके बाद अपन देखा जाएगा क्या करना है। तो मॉम ने बोला ठीक है जा, तो मैं गया। हाँ, और उसके बाद जब मैंने क्लास एक्चुअली ज्वाइन कर दी, तो मैंने सिर्फ घर पे सिर्फ मॉम को बताया था कि मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए, किसी को बताना मत, हाँ, मैं ठीक है। ओके, तो डैड को नहीं पता था, मेरे भाई को नहीं पता था, सिर्फ मॉम को पता था, और जो दोस्त थे थोड़े बहुत जिनको मैं शेयर किया था इस चीज को, वो उनको पता था। और मैं ऑलमोस्ट एक महीना मैं क्लास गया था, और घर पे मतलब डैड को पता नहीं था मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। फिर एक दिन सडनली मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरे को डैड का फोन आया, कुटेस तू। मैं कुछ बोल नहीं पाया, अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो डैड ने सामने से बोल दिया, तू म्युझिक क्लास मध्ये बसला रे? बोला हाँ, बोला ठीक है नंतर फोन करो ना। मैं बोला चल ठीक है, ओह, घर पे पता चल गया, अभी कुछ बोल नहीं सकते मैं। तो मैं घर पे आया, फिर घर पे आने का चिल था, मतलब डैड कुछ इतना स्पेसिफिकली बोल नहीं रहे थे मुझे कि क्यों हाँ, करना है सिंगिंग, ये क्यों करना है, वो हाँ, क्यों हाँ, करना है। फिर वो हाँ, एक पॉइंट के बाद ऐसे चल रहा था कि सिंगिंग को इतना प्रायोरिटी मत दे, कुछ और कर, तेरा बीएमएस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो बीएमएस के पहले 6 महीने में मैंने गिव अप कर दिया था, बोला मेरे से बीएमएस नहीं होगा, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने पहले घर पे फर्स्ट बताना सेमेस्टर कर में? दिया। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ और मेरे को बोर हो गया बीएमएस से, मैंने बोला मैंने नहीं करना घर पे, मैंने बोला मैं चला जाएगा, मेरे को नहीं करना है। तो घर पे वो ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा बहुत कुछ सीन हो गए थे उस टाइम पे। हाँ, तो हाँ, डैड से झगड़ा किया था, मॉम से झगड़ा किया था, भाई से भी झगड़ा हुआ था कि मेरे को बीएमएस नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चलते गया, फिर कैसे तो भी मैं मान गया कि चल ठीक है बीएमएस खत्म कर देंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। तो बीएमएस तो एक ऐसा बोलता ना साइड प्रोफाइल जैसा था मेरे लिए, मुझे इतना सीखा नहीं मैंने, बट कुछ तो था उधर ऐसा। तो तो मैं बोला चल ठीक है, अब डिग्री हो ही रही है तो खत्म ही कर देते हैं, अब 2 साल कर दिया तो हाँ, एक और साल में क्या फर्क पड़े। अभी मेरा हाँ, मेन सीन था बीएमएस लेने का, क्योंकि मुझे उसमें बोला गया था उसमें मैथ्स नहीं, ठीक है। तो मेरे को मैथ्स नहीं जमता, तो मैंने बोला ठीक है मैथ्स नहीं तो भाई अपन बीएमएस लेते हैं शांति पे। मेरे को एक्चुअली बीएमएम करनी थी, बट मेरे को हाँ, जाने नहीं दिया। तो हाँ,
मैथ्स नहीं, ये सोच के मैंने बीएमएस ले लिया, और फिर लास्ट ईयर में मैथ्स और उसमें मेरे को केटी लग गया, तो उसमें फंस गया। तो ये सब सीन हो रहे थे। तो ये 3 साल के इसमें डैड ने काफी ऐसा क्या बोलते हैं, कभी कभी सपोर्ट भी किया उस चीज को, कभी कभी ऐसा भी कहा कि कोई जरूरत सेफ नहीं भी है, रहे। ये मत कर ऐसा। हम्म। हर एक इंडियन पेरेंट बोलता है भाई बैकअप क्या है तेरा, अगर तू गिर गया वहां से हम्म। तो क्या होगा। ये सब वो हर घर में चलता रहा, मेरे घर पे भी था हाँ। कि डैड को बोल रहे थे हाँ। कि अब सोच बीएमएस के हाँ। बाद तेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हाँ। करना है, वो करना है, ऐसे सब चलते जाता था। तो ये सब चालू है। और बाद में धीरे धीरे जब फैमिली वालों को सच्ची में लगा कि हाँ मैं कर रहा है कुछ, तो म्यूजिक में कर रहा हूँ, हम्म। improve कर रहा हूँ, हम्म। बैंड बना चुका है और इधर उधर परफॉर्म कर रहा है, तब तक लाइव सब हम्म। चालू हो गए थे मेरे। नए तो शोज। हाँ। वहाँ परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा कमा रहा है, यहाँ वहाँ मार्केट में जा रहा है, घूम रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो वो लोग ने बोला ठीक है कर तू कुछ, अभी 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 क्या बोल सकते हैं। और एक पॉइंट का तो मैं भी ठीक है, मैं सुनने वाला है हाँ। नहीं कि क्या है क्या नहीं, तो फिर लोगों ने भी गिव अप कर दिया मेरे को बोलने के लिए कि तू कर मत, ये मत कर, वो मत कर। तो बस वैसे ही छोड़ दिया मेरे को वो लोग ने, और मैं करते आया अभी हाँ। धीरे धीरे। सही है। और दूसरा देख, एक चीज यही है कि पेरेंट्स को एंड में टेंशन रहता है कि इंडस्ट्री में जा रहा है और अभी क्या होएगा, क्या चल रहा है। और अभी एट दिस मोमेंट तो काफी कुछ चल रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है, सोनू निगम इज सेइंग दिस दैट। तेरे को डर लगता है क्या ब्रो, जेन्युइनली? क्योंकि मेरे को बहुत बार लगता है कि ब्रो इतना बड़ा ये सब अभी पब्लिक माफिया वाफिया बोल रहा है, गैंग हाँ। वैंग बोल रहा है, और कैसा होएगा? तेरे को डर लगता है क्या कि कैसे करेंगे ब्रो? गाना आता है, चलो गाना आ भी जाएगा, काम कैसे मिलेगा? फर्स्ट फर्स्ट चीज तो मैंने तो गिव अप कर दिया बॉलीवुड पे। तो मेरे को तो बॉलीवुड हाँ। मेरा गोल है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो मैंने छोड़ ही हाँ। दिया कि बॉलीवुड गोल है ही नहीं। हाँ। तो जब से हाँ। लकीली को मैंने सुना है तब से मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद से हाँ। जो अलग अलग जॉनरास, अलग अलग म्यूजिक मैंने सुने, और बाद में हाँ। उसको बॉलीवुड से कंपेयर मैंने किया है, तो समझ में आ रहा है बॉलीवुड बॉलीवुड मतलब कितना। प्लेबैक सिंगिंग, बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग बोल रहा ना बेसिकली। अभी ये कैसा पता है, ये चीज पहले बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मुझे लग रही थी जब मैंने शुरू किया था। तभी ऐसा लग रहा था कि ब्रो हाँ मतलब इतना मेरे को मेहनत करना पड़ेगा तो वो लेवल पे पहुंचेंगे, तो वो लेवल पे कुछ होएगा, तो वो लेवल पे ऐसा करना पड़ेगा, प्लेबैक सिंगिंग का ऐसा होएगा वैसा होएगा, ये सब चल रहा था। लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर जैसे जैसे वो कंपटीशन में पता चला कि वो मार्केट कैसा है, मतलब लोग कितना मर रहे हैं, कितना एक दूसरे को ऐसा ऑलमोस्ट बेचने पे आ गया पब्लिक, कि हम लोग को एक गाना गाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने वो रैट रेस देख के छोड़ दिया। फिर मैं बोला जान दे, क्यों जाने गए, अपन उससे अच्छा यहाँ पे खुद ही क्रिएट करके अपना खुद का छोटा सा दुनिया बसा देंगे, क्या सीन उसमें। तो ये ऐसा दे हाँ। तो मैं ऐसे सोचने लग गया धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे हाँ। लोगों के बारे में मैं सुन रहा था कि इतने बड़े बड़े सिंगर्स लोग को वो लोग ने छोड़ा नहीं, तो हम लोग तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है हम लोग उनके सामने, मतलब। फिर एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़ते गया गानों को लिखने के लिए, तो फिर अलग अलग राइटर्स जो पुराने सिंगर्स के पुराने जमाने के जो राइटर्स हैं, आनंद बख्शी साहब, जावेद अख्तर जी, ये लोग का जो बुक्स अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत ऐसा रिसर्च करने लग गया। तो फिर जावेद अख्तर साहब का एक शो आता था, जिनमें वो पुराने आर्टिस्टों के बारे में ऐसे बातें करते थे, उनके स्टोरीज के बारे में बताते थे, ये वो। तो वैसे मैंने उनका एक एपिसोड देखा जहाँ पे वो आर डी बर्मन साहब के बारे में बात कर रहे थे। तो दोनों ने कहा था कि आर डी बर्मन साहब वाज अ सेंसेशन फॉर 3-4 डेकेड्स इन अ रो, ठीक है। तो या। उसके बाद एक पॉइंट के बाद जब उनका वो टॉप ऑफ द लेवल में थे, तो वहां पे भी उन्होंने एक पॉइंट के बाद मतलब मुझे ऐसा ऐसा मुझे अभी लग रहा है कि वो माफिया का जो डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री में, वो तब से शुरू हो गया रहेगा, क्योंकि वो लोग ने पहला तो आर डी बर्मन साहब को ही टारगेट किया, और उनके लाइन में कुछ 12-13 फिल्म्स फ्लॉप हो गए। तो फिर जो जावेद अख्तर साहब बोलते थे कि इनके ऑफिस के बाहर इतना गर्दी होता था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर, नए नए सॉन्ग राइटर्स, ये लोग सब लोग आके गर्दी में बैठे रहते थे। आज उनका पूरा ऑफिस खाली है, क्योंकि आर डी बर्मन साहब के बारे में इतना झूठ बोला गया बाहर, ऐसा सब बातें होने लगी। तो वो जो रूमर्स होता था वो तभी से शुरू हो गए थे। तो बर्मन साहब को तभी काम नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी ऐसा एक बोलते हैं ना चीज है, आर डी बर्मन को काम नहीं मिल रहा है ब्रो, ऐसा सीन होता। तो ये वो बात जब उन्होंने कहा, तब मेरे को ऐसा मतलब फिक्स हो गया मेरे दिल में कि बॉलीवुड गंदा जगह है, जाने का ही नहीं है मेरे को। तो फिर भी ओके। मैं वो पढ़ा उनके बारे में कि जब आर डी बर्मन को लोग टारगेट कर सकते हैं, ए आर रहमान को तो लोग टारगेट कर सकते हाँ। हैं, सोनू निगम, शान, हम्म। फिर और कितने सारे सिंगर है, कैलाश खेर और के, ये लोग सबको हाँ। टारगेट कर सकते हैं, तो हम लोग जैसे न्यू कमर्स का तो कोई औकात है ही नहीं जाने का वहां पे। हम्म। और टू बी ऑनेस्ट, अगर जो इंडस्ट्री में तुमको रिस्पेक्ट दे नहीं रहा एज एन आर्टिस्ट, उधर जाके क्या मतलब।
मतलब हम्म ये वही बात हो गई ना कि तुम लोग खुद का मार्केट गिरा रहे हो, तो क्या हम्म पॉइंट है? हम्म अभी तू, तेरा कोई फिल्म रहेगा, तुझे पता है उस फिल्म का लेवल क्या है, उस फिल्म की ऑडियंस कैसी होनी हम्म चाहिए, तो तू उनके पास ही जाएगा ना, तू बिन मतलब तो किधर हम्म घूमेगा नहीं उसको लेके। तो हम्म ये वही बात हो गई थी। तो इंडी म्यूजिक मुझे लगता है इसी की वजह से ऊपर नहीं आ पाया, क्योंकि बॉलीवुड में जो सॉन्ग बज रहे थे ना, वो लोग ने इतना बड़ा लेवल पे मार्केटिंग कर दिया उसका कि इंडी म्यूजिशियंस किसी का नाम हुआ ही नहीं। हम्म, और तू आज भी दिखेगा तो सिर्फ सिंगर, कोई एक स्पेसिफिक सिंगर है, फॉर एग्जांपल अभी अरिजीत सिंह ही ले ले। अरिजीत सिंह का कितना हम्म, बड़ा अभी मार्केट है, उसके नाम पे भी हम्म, मूवीज बिक रहे हैं, सॉन्ग्स तो छोड़ ही दे, हम्म, ऐसे कुछ भी गाने गा रहा है। और मैंने कल या परसों ही मैंने बेनी दयाल का इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने कहा कि बॉलीवुड कैसा है कि उनको किसी का कॉपी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई अरिजीत सिंह गाने वाला नहीं चाहिए, अरिजीत सिंह जैसे गाने हाँ वाला नहीं चाहिए, सोनू निगम जैसे गाने वाला नहीं चाहिए। हाँ ये सब सीन चल रहे हैं, तो जो फ्रेश वॉइस है वो लोग उसको पकड़ते हैं। तो अब इसका दो रीजन हुआ, एक तो उसको फेमस करके उससे पैसा कमाया जाए, दूसरा लोगों को नया आवाज मिल रहा है, तो लोग अभी मानने को बैठ गए कि हाँ बॉलीवुड में न्यू कमर्स को भी एंट्री मिलती। तो हाँ ये सब सोच में तभी ऐसे छोड़ दिया मैंने कि ब्रो बॉलीवुड में कुछ सीन नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड ना हमको कुछ अच्छा सिखा रहा है, ना कुछ सिखाने दे रहा हम्म है, तो क्या ही मतलब उसके बाद हम्म मुझे। नाइस। तो अभी दूसरा एक चीज ये है कि फिर तू कॉमर्स कैसे बैलेंस करेगा? मतलब हमेशा यही स्ट्रेस होता है ना कि अरे मेरे को मेरा आर्ट फॉर्म आता है और मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तू बेसिकली वही करता है ना, तेरे गाने से तू खुद को एक्सप्रेस करता है, जैसे माउंटेन्स जो भी बात हम्म, हुई अपनी, वो पार्ट तो तू उस पे तो काम कर ही रहा है, रोज कर रहा है। पर ये दूसरा पार्ट ये है कि खाएगा क्या? यही हम्म, पूछते हैं ना अपने को हमेशा कि हाँ ठीक है तू कर ले ये सब, पर खाएगा क्या? तो हम्म। उसके बारे में तू क्या सोच रहा है? मतलब उसका क्या थॉट प्रोसेस है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे? उसको रैप अप फटाफट करते हैं और फिर एक लास्ट गाना सुनते हैं तेरा और उस पे एंड करते हैं। सॉरी, कंटिन्यू। चले। तो पैसे वाला सीन फिलहाल तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल नहीं रहा है, ठीक है, हम्म क्योंकि आगे जाके इस फील्ड में से मेरे को कैपिटल कहाँ से मिलेगा, पैसे कैसे बनाऊं, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, तो ये सब मैं अभी सोच नहीं रहा है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने प्लान ही नहीं किया। हम्म अगर मैं प्लान करते बैठ गया तो भाई बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे को नहीं चाहिए। तो ये सब ये सब सीन मेरे को भी चाहिए नहीं। तो हाँ ऐसा अभी तो फिलहाल अभी क्या बोल सकते हैं कि जो है जैसा है वैसे ही रहने दो यार। अभी फुकट का स्ट्रेस लेके बैठेगा ना, तो मतलब जो तुम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाएगा भाई, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जो अभी गाना में लिख हाँ रहा है हाँ वो सोच में डूबा हुआ रहता है पूरा टाइम आदमी, या जो भी हाँ आर्टिस्ट हाँ है, तेरे फिल्म्स को लेके तू बैठा रहेगा। अगर तू उसमें घुसेड़ेगा कि भाई तू आगे आगे पैसे कैसे कमाने वाला है, तो तू नहीं सोच पाएगा जो तू ऑलरेडी क्रिएटिव सोच रहा है। तो हाँ हाँ वो 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 चीज को ही मेरे को किधर भी ऐसा उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, मेरे को जैसा है वैसे रहने हाँ दो। हाँ कि वो आगे जाके ओके। मैं फकीर भी बन गया तो भी देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, देखा जाएगा क्या होता झोला लेके निकल पड़ेंगे। है। हाँ। ठीक है। चल, अभी पब्लिक बहुत बहुत सारे लोगों ने बोला है दिल की सुबह, दिल की सुबह। तो अगर तेरे को मन है तो दिल की सुबह सुना, या कोई भी दूसरा गाना सुना दे, उस पे अपन ठीक है। एकदम फुल सा कड़क वाला एंड करेगा। क्या बोलता है? दिल की जुबा तो अभी तक मतलब काफी लोगों ने सुन लिया है, तो दिल की जुबा हम्म ही एंड करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो दिल जाएगा, की ठीक है। जुबा बेसिकली सेकंड सॉन्ग है, जो हाँ हाँ ऐसे लिख दिया था मैंने, फिर उसके बाद मैंने कहा था जैसे कि उसका मीनिंग कुछ और ही निकल गया। तो ऐसे हम्म देखा जाएगा तो दिल की जुबा इज बेसिकली अबाउट व्हाट योर हार्ट वांट। एंड ये हम्म मैंने खुद सोच के लिखा था, दैट इज कि मेरे को क्या करने का है। मतलब हम्म बेसिकली इफ आई एम वॉन्डरिंग अराउंड, मैं कहाँ हम्म वॉन्डर करूँ प्रॉपरली। तो मैंने पहले ही बोल हम्म दिया था कि माउंटेन्स के साइड पे, हिल स्टेशन इधर उधर, या और साउथ में जो हाँ नेचर वाले एरिया है वहां पे, उधर ही मतलब मेरा दिमाग मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। तो उसी चीज को हम्म लेके ये गाना भी वैसे ही लिखा है मैंने। चलते खो जाते दिल कहाँ, सारे रास्ते मिलते यहाँ। जिंदगी कह रही अजनबी
संग मेरे साथ हो, कह दो जो दिल में ये बात है, गुमसुम सी है ये फिजा, खामोश दिल की जुबान, खामोश दिल की जुबान। हवाओं में उड़ता मैं जैसे कोई गुम है यहाँ पर, नीला गगन चूमे सागर की लहरों को गहराई में ये खुदा, रोशनी भी है ज़मां, रोशनी भी है ज़मां। पास हो तुम मेरे संग मेरे साथ हो, कह दो जो दिल में ये बात है, गुमसुम सी है ये फिजा, दिल की नाइस, बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू ब्रो। और ऑन दिस नोट मेरे को लग रहा है एक पहले तो शाउट आउट दे दे कि कहाँ पे तेरे को, जहाँ पे तू चीजें अपलोड करता है, लोग कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इतना कुछ ज्यादा फॉलोइंग नहीं है मेरा, बट जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं उतने लोगों को बता दे कहाँ तेरे को फॉलो कर सकते हैं, और अभी नेक्स्ट क्या करना है। सो फॉलो कीजिए मुझे, मिस्टर सामंत उधर ऊपर रहेगा आई गेस। और टैग कर दूंगा मैं तेरे को। हाँ हाँ, So मेरे को follow कीजिए। Soon we are going to be coming out with the originals. We are planning to come out maybe next year. Let's see. We hope for the best. And धीरे धीरे मतलब इंडी म्यूजिक को भी सपोर्ट करना है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग भी गाना प्रॉपरली निकाल नहीं पाएंगे, और हमारे भी गाना रहमान तक पहुंचेंगे नहीं। तो प्लीज ऐसा कीजिए दुआ कि हमारे गाने भी रहमान तक पहुंचे और रहमान हमको प्रोड्यूस करे। तो प्लीज मदद करो प्लीज। ठीक है। तो और तेरे बैंड का तो शाउट आउट दे दे यार। ऋषिकेश, हाँ भाई ऋषि, मैं देख अगर सामंत लाइव स्ट्रीम पे है तो मैं गाना क्यों गाऊंगा, इट डजंट मेक सेंस, तो मैं गाना नहीं गा रहा। और अभी तेरे बैंड का नाम बता दे। सो मैं सबका एक शाउट आउट दे देता हूँ, जितने भी लोग मेरे को जानते जिनके अभी काम किया। तो शुरू करते हैं दुष्यंत ब्राह्मण, जो काफी अच्छा तबला वादक है, परकशनिस्ट है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। काफी अच्छा प्ले करता है, 15 साल से प्ले कर रहा है। फिर मेरे गिटार सर है, मेरा भाई जैसा आदमी कुणाल निकम, बहुत ही काफी अमेजिंग गिटार बजाता है, तो उसको भी फॉलो कीजिए। वो भी अपना धीरे धीरे ओरिजिनल चीजें बाहर निकाल रहा है, तो प्लीज उसको भी सपोर्ट करना। मेरा छोटा भाई है समीर, ड्रमर है, उसको भी सपोर्ट कीजिए। वो भी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, काफी अमेजिंग हो चुका है उसका भी प्लेइंग। ऋषि है मेरा दोस्त, मुझे काफी गाइड कर चुका है, मुझे काफी हेल्प करता है सिंगिंग और सॉन्ग सिलेक्शन में भी। तो वो नहीं रहता था तो काफी सारे मेरे लाइव सेशंस ऑफ चले जाते थे। तो बिग शाउट आउट टू ऋषि। और इसके अलावा और कौन है, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी उनके साथ इतना कुछ अच्छा जैमिंग है नहीं, तो बोल के मतलब नहीं रहेगा। फिलहाल तो अभी मुझे भी फॉलो कीजिए ताकि मुझे भी थोड़े फॉलोअर्स मिले। हाँ, और अगर कोई ऐसा लग रहा है कि जो लोग के साथ ये बात कंटिन्यू करनी चाहिए आगे के एपिसोड में इन दिस सो कॉल्ड शो कॉल्ड अनकही, सो प्लीज मेरे को डीएम करो यार, मेरे को बातें करनी और कलाकार लोग के साथ। और मेरे को आई होप तेरे को मजा आया ब्रो, जो बात अपन मिल के करते हैं वो ऐसा लाइव सेशन पे किया, बिकॉज व्हाई नॉट। तू मेरे को आई होप तेरे को मजा आया। फर्स्ट गेस्ट बुला दिया, मेरे को उधर ही मजा आ गया। मैंने होप ही छोड़ दिया अपन क्या बात करें। सब अपन चलो सही है ब्रो, तो मिलते हैं अभी। बाय बाय, लव यू, बाय बाय बाय।